Okay, now we are going to discuss the exercise questions of AC chapter 39 1 to 10. ठीक है. Find the time required for 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS. तो करंट जो है RMS हो जाए 0 से. RMS is nothing but I naught by root 2. है ना. तो इसको करंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे इंस्टेंटेनियस करंट के. तो ये हो जाएगा I naught कैंसिल हो जाएगा. तो 1 by root 2 कहते हैं पाई बाय 4 के लिए होता है साइन की वैल्यू. Therefore ओमेगा t will be पाई बाय 4. सॉल्व करेंगे t के लिए. It comes to be 1 by 400 which is 2.5 milliseconds. Instantaneous AC current की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. This one is next. Okay, you want to see this? What we did, 0 से पीक. ओके, 0 से RMS तक पहुंचने में थोड़ा सा कम होता है यहाँ तक. RMS is I naught by root 2. ये वैल्यू इसमें पुट करके साइन इक्वेशन सॉल्व करके t की वैल्यू इतनी आती है. इतने टाइम में वो मिनिमम टाइम. Minimum possible time. Next one is household supply of electricity is 220 volt and 50 hertz. Find the peak voltage in least possible time in which voltage can change from RMS to 0. वही पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है. सेम आंसर आएगा सेकंड पार्ट का. फर्स्ट पार्ट इज रूट 2 टाइम्स of RMS value which comes close to 311. इसमें देखो 0 से यहाँ पे देखो 0 से RMS जाओ या RMS से 0 आओ, सेम टाइम रहता है. सिमेट्रिक सिचुएशन होती है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन अगेन. फ्रीक्वेंसी 50 है तो सेम आंसर आ रहा है फिर से. थर्ड वन इज bulb rated 60 watt at 220 volt is connected across household supply of 220 volt. Calculate the maximum instantaneous current through the filament. तो इससे हमने रेजिस्टेंस निकालेंगे v स्क्वायर बाई p 220 का स्क्वायर बाई 60. नाउ IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R. VRMS 220 वोल्ट है. R की वैल्यू ये पुट कर दी, 60 ऊपर आ गया. इसको सॉल्व करेंगे 3/11 और पीक करंट निकलना तो रूट 2 टाइम्स करना पड़ेगा. इट कम्स 0.39 एम्पियर. मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज पीक करंट. चेंज होता रहता है ना. पीक करंट इंस्टेंटेनियस रहता है, फिर नीचे भी आता है. क्वेश्चन नंबर 4 we see now. Electric bulb is designed to operate at 12 volt DC. If this bulb is connected to AC source and gives normal brightness, what would be the peak voltage of the source? Electric bulb is designed to operate 12 volt DC. तो ये 12 वोल्ट RMS भी 12 ही रहता है. DC के साथ RMS डिफाइन किया जाता है कांस्टेंट करंट के साथ. दिस हैज टू बी RMS वैल्यू 12. पीक वैल्यू उसकी रूट 2 टाइम्स व्हिच कम्स टू बी क्लोज टू 17 वोल्ट. The peak power consumption by the resistive coil when connected to AC source is 80. Peak power P naught दिया which is V naught into I naught होता है. 80 given. Find the energy consumed by coil in 100 seconds which is many times larger than the time period of source. The energy consumed in 100 seconds average होती है वो. Average energy consumed is average power into time which is RMS values into time, जिनको हम रूट 2 से डिवाइड करके पीक में कन्वर्ट कर सकते हैं. I naught into V naught is 80 given. नीचे 2 आ जाएगा, ये 100. तो ऑलराइट. तो पीक पावर दिया था और ये लार्जर टाइम इंटरवल के लिए दे आर RMS वैल्यूज. एवरेज वैल्यूज जो आती RMS से आती.
रेजिस्टेंस है इसलिए cos फाई नहीं लिखा, यहाँ पे रेजिस्टिव है तो cos फाई 1 हो जाएगा. Alright. Next question we are going to see dielectric strength of air is this much. Dielectric strength का मतलब क्या होता है? Maximum electric field which it can sustain. उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है इसका. It is electric field, peak electric field, E naught. ठीक है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है. फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू. ठीक है. तो आरएमएस वैल्यू इज पीक वोल्टेज अपॉन रूट 2 और V इज इक्वल टू ईडी होता है. पीक वोल्टेज के लिए पीक फील्ड लेंगे which is this much maximum field which dielectric medium can sustain, which is electric field is given, distance is given between the plates or root 2. When we solve it we get 210 volt. Seventh question पे आते हैं. Current in discharging LR circuit is given by this equation. Tau is the time constant of circuit. Calculate the RMS current for period T is equal to 0 to T is equal to tau. तो RMS करंट का फार्मूला रूट मीन मतलब टाइम से डिवाइड किया और स्क्वायर किया. तो आई फंक्शन को स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, टाइम से डिवाइड करते मीन के लिए. तो इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कांस्टेंट तो बाहर आ गई है, नीचे टाउ आ जाएगा और ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा साइन के साथ. बाहर निकाल लेंगे उसको और लिमिट लगा देंगे. टाउ कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा. जब जीरो लिमिट लगाएंगे इसमें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा. सॉल्विंग इज नाउ, ये कैंसिल करा दो, माइनस यहाँ पे माइनस है तो साइड चेंज कर दो और सिंप्लीफाई करो उसको, एलसीएम ले लो, तो ये आंसर आ जाएगा. दिस इज जनरल फार्मूला फॉर आरएमएस. डेरिवेशन भी इससे करते हैं हम लोग. साइनोसाइडल का इसी से डेरिवेशन करते हैं. आई नॉट बाई रूट 2 आता है. But this is different function, different current equation. Now, capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to the oscillator, giving the output is this much. Find peak currents at various omegas. तो omega is 10, तो XC निकाल लिया 10 to the power 4. करंट निकाल लिया 10 to the power -3 आ रहा है. पीक वोल्टेज अपॉन एक्सी. और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है, अभी ओमेगा बढ़ रहा है डिनोमिनेटर में है, तो इम्पीडेंस कम हो रहा है, उसका रिएक्टेंस कम हो रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है. नेक्स्ट केस में और बढ़ गया, लास्ट केस में और बढ़ गया. ओमेगा से एक्सी निकाला, फिर ओम्स लॉ लगा के, ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, लगा के हमने पीक करंट निकाले. तो ओमेगा गोज अप, then current also goes up in this case. Ninth में coil of inductance is 5, negligible resistance connected to oscillator of previous problem. Find the peak current in the circuit as omega for this omega. L is given, XL निकाल लिया. ओमेगा के लिए सेम क्वेश्चन, सेम मेथड. अभी एक्सेल निकालेंगे, फिर ओम्स लॉ से करंट निकालेंगे. तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस कम है तो करंट ज्यादा आ रहा है. जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है करंट घटता जा रहा है. इसमें रिवर्स सेक्शन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इसमें करंट घटता है, कैपेसिटेंस में इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 10 we'll see now. This one, coil has resistance this much, inductance this much. It is connected to AC source of this values. Find the average power consumed in the circuit. तो इसके लिए करंट वगैरह निकालना पड़ेगा. पहले एक्सेल निकाल लिया, Z निकाल लिया, 26 आ गया. तो एवरेज पावर के लिए
VRMS IRMS cos phi, तो IRMS को VRMS अपॉन Z लिख दिया। ठीक है, तो अभी सबकी वैल्यू पुट कर दी। VRMS इज गिवन 6.5, Z निकाला हुआ है ऊपर, cos phi is also R by Z, R is given, yes, R is also given, Z. Solve it, 0.625 watt is the answer. All right, next question we'll do in the next lecture. Thank you very much.